स्वागत है आपका यस न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुफियान। डॉग सेवर खुशी खान ने लगाई मदद की गुहार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की इस बिजी लाइफ में बहुत कम लोग दूसरों की मदद कर पाते हैं। ऐसे माहौल में खुशी खान ने अपनी खुशी खान फाउंडेशन की ओर से बेज़ुबान जानवरों और ख़ास तौर पर उन कुत्तों की मदद करने का बीड़ा उठाया है जो बेसहारा, बीमार और अपाहिज हैं। खुशी फाउंडेशन के कामों का जायज़ा लेने पहुंचकर पालिका कमिश्नर सौदागर सर ने उनके इस काम की खूब तारीफ करते हुए खुशी खान की हर मुमकिन मदद करने का उन्हें आश्वासन दिया है और साथ ही आधुनिक भगीरथ के नाम से प्रसिद्धि पा चुके बीजापुर उस्तुवारी मंत्री डॉक्टर एम बी पाटिल और एमएलए यत्नाल और आम लोगों से भी खुशी खान ने अपील करते हुए इस फाउंडेशन के लिए मदद की गुहार लगाई है। ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ದರ್ಗಾಟಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಂಥ ಅಫ್ಜಲ್ ಖಾನ್ ಮಸೂತಿ ಹತ್ತಿರ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಖಾನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರ ಈ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಬಂದು ನಾನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಖುಷಿ ಖಾನ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಯಾವ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಈಡಾಗ್ತಾವೆ ಅಂಥ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ತಾವು ಸ್ವತಃ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಾಲಿಕೆ ಪರವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸವು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದವಾಗಿದ್ದು ಇಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಊರಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಔಷಧ ಹಾಕೋದು ನಡೀತದೆ ಸರ್. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ 8 ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಔಷಧ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ. ಈ ರೀತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ನಾಗರಿಕರು ಕಾನೂನು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಮನುಷ್ಯನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನೂನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಕಾನೂನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ಡಾಗ್ ಬೈಟ್ಸ್ನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಊರಿನಲ್ಲಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಗ್ಸ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರುಗಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ವೆಟರ್ನರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 1700ವರೆಗೆ ನಾವು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ರ್ಯಾಬಿಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಆ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಏನೇ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಿಸಿರುವಂತಹ ಷರತ್ತುಗಳಂತೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ರ್ಯಾಬಿಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಖುಷಿ ಖಾನ್ ಅವರು ಯಾವವರಿಗೆ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಖುಷಿ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ನೆರವು ಬೇಕು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದು ಏನಾದರೂ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಹಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. न्यूज़ में मैं बताई थी, मेरा सेंटर का काम अभी चला था, शुरुआत हुई थी. सेकंड टाइम में भी आधा काम एक बाद यस चैनल वाले को ब्लॉकों में दिखाई थी. आज मेरा काम पूरा कंप्लीट तो हुआ. म्यूनसिपलिटी कमिश्नर सर उन्होंने विज़िट करे थे. अभी जस्ट उन्होंने गए विज़िट करके उन्होंने बोल को गए अगर हमारे से क्या भी हेल्प की ज़रूरत है या म्यूनसिपलिटी की तरफ से क्या भी हेल्प की ज़रूरत है तो हम ना कॉल करो बोल को. तो कमिश्नर सर उनको तो काम अच्छा लगा. सेंटर का वर्क हो देखे उन्होंने मुझे बात करी और फिर उन्होंने अभी तो ऐसा बोल को गए उन्होंने सर कि हेल्प की ज़रूरत है तो म्यूनसिपलिटी से भी हेल्प मिलती है, हमारे से भी हेल्प मिलती है बोल को. तो बसनगौड़ा सर आप तो सिटी के एमएलए सर हैं तो प्लीज़ मुझे हेल्प करो सर. मेरा सेंटर का काम तो ख़त्म ही है तो आने वाले अभी बहुत छोटे छोटे काम भी हैं. उसके बाद भी मुझे पानी की फैसिलिटी नहीं है सर, तो प्लीज़ मुझे पानी की फैसिलिटी कर को दो. एनिमल्स मैं मेरे वास्ते कुछ भी नहीं मांग रही, मेरे बच्चे एनिमल्स के वास्ते उनको पानी की
बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती। अभी तो मैं अकेली हर चीज़ करे से, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं मेरे से अफोर्ड भी नहीं हो सकते, ना मैं हेल्प उतना कर सकती। तो बसनगौड़ा सर तुम्हें असेंबली में बैठ को, विधानसभा में बैठ को आवाज़ उठाते हैं, तो जानवरों के असर भी आवाज़ उठाओ। हमारे बीजापुर के अंदर ऐसे कुछ चीज़ें होंगी कि आज तक वो कौन नहीं करे। तो तुम्हें अगर तुम्हारी एक आवाज़ से बच्चों को हेल्प मिल सकती है। असेंबली में बैठ को आवाज़ यथाश उठाने का बोल को नहीं है सर। तो प्लीज़ एनिमल्स के बारे में भी आवाज़ उठाओ, गवर्नमेंट से क्या भी अच्छा से अच्छा होने दे। एमबी पाटिल सर पहला तुम्हें नीरावरी में थे, तुम्हें पानी की फैसिलिटी कर को दें, पब्लिक को बहुत हेल्प करी। एमबी पाटिल सर तुमने पब्लिक भगीरथ बोलती है, क्या हमारे बच्चों के साथ तुम्हें भगीरथ नहीं हो सकती है क्या? मैं तो मेरे वास्ते नहीं मांग रही, लेकिन जो भी एनिमल्स हैं, डॉग हैं, ये सब हैंडीकैप अपाइज डॉग है, रोड के ऊपर एक्सीडेंट हुए सब डॉग हैं सर। मेरे बच्चों का सर भगीरथ बनो और प्लीज़ सर आई नीड यूर हेल्प। मैं तुम्हारा हेल्प मांग रहा हूँ। तो पहले तुम्हें जब पिछली बार तुम्हें मिनिस्टर थे तो पानी के वास्ते बहुत सारे लोगों की हेल्प करें। इस चैनल माध्यम से तुम्हें मुझे देख रहे हो तो सर प्लीज़ मेरी मदद करो। कमिश्नर साहब आए थे यहाँ पर, क्या बताए? और कमिश्नर सर बोले हैं कि तुमने कौन सी भी हेल्प की ज़रूरत है तो हम ना बोलो, हमें हेल्प करते हैं। म्यूनसिपैलिटी से भी कौन सी भी हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत है तो बोलो, हमें तुमने हेल्प करते हैं करको बोल को गए। तो क्या अभी तक किसी की आप जो आप फाउंडेशन एनिमल फाउंडेशन बना रहे हैं, अभी तक किसी की आपको मदद हुई है यहाँ पर? नहीं, किसकी भी मुझे कौन भी हेल्प नहीं करे, खुद मैं एकली से करूँ। एकली का इन्वेस्ट है मेरे, एकली भी ऐसे आगे हेल्प करते हैं, हमें कर को नहीं बोले। ये ज़माने के अंदर है 10 रुपए की कौन किसकी हेल्प नहीं करते, तो मैं कैसे उम्मीद करूँ कि मुझे हेल्प करते हैं मुझे नहीं, मेरे बच्चों को हेल्प करते हैं करको मैं कैसा उम्मीद करूँ। कुछ चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं रहती है, तो कुछ चीज़ें अपने आप से हो जाना। अब जैसे कि मैं खुद से मैं एकली करी, तो मुझे थोड़े लोग आए से आगे थोड़ी थोड़ी हेल्प भी करेगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। तो अभी क्या आप हमारे नगर के शासक से क्या विनती करते हैं? हमारे एमएलए हैं बसनगौड़ा। मैं बसनगौड़ा सर से इतनी हेल्प मांग रहा हूँ कि मुझे मेरे बच्चों के वास्ते ऐसे पानी की फैसिलिटी कर को दो। अगर मेरे बच्चों के वास्ते कुछ भी अच्छा हो रहा बोले तो मुझे वो कौन सी चीज़ें ऐसे बड़े कर को दो कि मेरे आने वाले मेरे एनिमल्स के वास्ते रहे वो हेल्प हो सके। तो बसनगौड़ा सर प्लीज़ मेरी हेल्प करो, क्योंकि तो एनिमल्स के लव को कौन समझने वाले तो नहीं है सर। शायद आई थिंक तुम्हें समझ सकते हैं, क्योंकि तो तुम्हें प्राणी प्रेमी है, मुझे मालूम है। असेंबली में बैठ को इतनी ज़ोर से आवाज़ करते सर, तुम्हें क्या एक एनिमल्स के असर एक आवाज़ नहीं उठा सकते क्या सर तुम्हें? तो प्लीज़ एक आवाज़ तुम्हारी उठा को बोलो कि तुम्हें एनिमल्स के असर भी कुछ कर सकते हैं सर। तो प्लीज़ मुझे एनिमल्स के असर तुम्हारी हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत है। आने वाले दिनों के अंदर सर मैं गाय वगैरह सबको हेल्प करना चाहता हूँ, मैं खाली डॉग को कर रहा हूँ, तो मुझे तुम्हारी हेल्प भी मिल रही है कि तो मैं गायों को भी कुछ कर सकता हूँ। तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तो अभी हमारे इंचार्ज जो बीजापुर के इंचार्ज मिनिस्टर डॉक्टर एमबी पाटिल, उनसे क्या कहते हैं? एमबी पाटिल सर तो पहले बहुत अच्छे हैं, पानी के बारे में बहुत फैसिलिटी लोगों के वास्ते कर को गए। तो अभी मैं उनके से भी गुजारिश करता हूँ कि एमबी सर प्लीज़ मेरी मदद करो सर प्लीज़, क्योंकि तो पानी के वास्ते तुम सबको तुमने भागीरथ को ऐसे ही नाम नहीं रखे सर। तुमने लोग तो भगवान मानते हैं सर, क्या मेरे बच्चों के वास्ते तुम्हें भगवान नहीं बन सकते? क्या मेरे एनिमल्स के वास्ते तुम्हें एक हेल्प मेरी नहीं कर सकते? सर प्लीज़ एमबी पाटिल सर प्लीज़ मेरी हेल्प करो। मुझे यहाँ छोटी छोटी चीज़ों की थोड़ी कमी है, क्या मुझे तुम्हें मुझे सर तुम्हारे वास्ते तो वो बहुत छोटी हेल्प होती है, मेरे वास्ते वो बहुत बड़ी हेल्प होती है। प्लीज़ सर मैं अपना हाथ जोड़ को रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ कि मेरी हेल्प करो। तो अभी आपको कांटेक्ट कैसे करें, कोई लोग आपकी मदद करना चाहते हैं? मेरा हेल्पलाइन नंबर है क्या हेल्पलाइन? 7019708980। इस नंबर पे आपको कभी भी चल रहा था क्या? हाँ, एनी टाइम कॉल कर सकते हैं मुझे। फोन पे नंबर वगैरह है कोई आपको? अभी तो फ़ोन पे का नंबर नहीं है, तो ओपनिंग के बाद मैं फ़ोन पे का नंबर भी मैं डाल देता हूँ। मदद करना चाहें तो क्या कैसे करें? मुझे डायरेक्टली कॉल करें, मुझे जो भी चीज़ें ज़रूरत हैं वो खुद दिला सकते हैं। डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक़ है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972295999 और 8050828793। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್‌ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್‌ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.